हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू पावर कॉन्सेप्ट्स वर्बल एबिलिटी सेशन। सो आज के इस सेशन में जानते हो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस सेशन में हम लोग एक बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में समझने वाले हैं। दिस इज अराउंड पावर रीडिंग। नाउ व्हाई पावर रीडिंग? पावर रीडिंग क्यों? पावर रीडिंग किस लिए? हमारे एंट्रेंस टेस्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत क्रूशल हिस्सा है, राइट? तो अगर मेरी रीडिंग का तरीका सही हो, मेरी पावर पैक्ड रीडिंग हो, मुझे माइंड मैपिंग समझ में आए, मुझे आइडियाज को अ, पढ़ना, ऑर्गेनाइज करना, आइडियाज जनरेट करना आ जाए, तो मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में स्कोर कैसे बूस्ट नहीं होगा? होगा ना? तो उसके लिए आज हम समझेंगे कि कैसे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को डिकोड कर सकते हो, गिवन इन्फॉर्मेशन को समराइज कर सकते हो एंड अल्टीमेटली सही आंसर्स तक पहुंच सकते हो। सो स्टिक टिल द एंड। इफ एट ऑल यू हैव एनी डाउट्स, पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को पॉज करते रहना, क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करते रहना, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालते रहना एंड टूवर्ड्स द एंड यू विल बी एबल टू डू अ फैंटास्टिक जॉब एंड आपको लगेगा कि हाँ, मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े तो इम्प्रूव हो गए हैं या हो सकता है ज्यादा इम्प्रूव हो गए हो। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अ पैसेज, एन आर्टिकल, एनीथिंग, सबसे पहले तो जरूरी होता है ये आइडेंटिफाई करना कि सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन क्या है। सो when you will start reading the a full length passage, तो आपको अगर सही मायनों में कॉम्प्रिहेंड करना है, रीडिंग को कॉम्प्रिहेंड करना है, तो आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि राइटर क्या कहना चाह रहा था। तो आई विल शेयर अ सिंपल सेंटेंस विथ यू। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई ये करना है कि बात किस चीज के बारे में हो रही है, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज दिस। So this says a ring of towering mountain encloses the valleys, the valley. What do you think is the subject of discussion here? I think this one is easy. हम एक ring of towering mountains की बात कर रहे थे. We were essentially talking about the ring. The ring. Okay, it won't allow me to write, but I guess let's take a look at the next one. The girl with the purple flower on her skirt was at the park in the middle of the day. What is the subject of discussion? What is being talked about here? I guess identify karo. What are we talking about? Well, I think we are talking about the girl who is at the park. So whether she has a purple flower on her skirt or a yellow butterfly on her skirt is not relevant. We just know that the girl was in the park. So the girl is being talked about. The next one, identify. After the second course of their meal, the third course of the feast, which included cheese, cream, fruits, was served. What do you think is talked about? Is it the second course? Are they being discussed? Is it the third course, or is it what was included in the third course? What is being talked about? Well, we are talking about the third course of the feast was served. So, okay, हुआ कब? सेकेंड कोर्स के बाद हुआ। कोर्स में इंक्लूडेड क्या था? सर्टन चीजें इंक्लूडेड थी, लेकिन सर्व एक्चुअली में क्या हुआ था? सर्व हुआ था, लेट मी गेट माई पेन रेडी, सर्व हुआ था थर्ड कोर्स। ओके, so the third course of the feast is being discussed. The next one, identify what is being talked about. Without a doubt, the most critical factor in the experiment is the health of the participants. What do you think is being talked about? What? Yes, absolutely right. We are talking about the most critical factor, which is the health of the participants. So वो experiment में है, वो कहाँ है, irrelevant है. हम बात कर रहे हैं सबसे critical factor की. So critical factor is being discussed here. Try this one. In spite of the torrential rain, the troop marched through the woods and followed a trail of yellow corn left by the captain. Now, what is the subject of discussion here? क्या बात, किस बारे में बात कर रहे हैं हम? Absolutely right. We are talking about the troop that marched and followed. तो troop ने किया क्या? March किया and follow किया. A trail of yellow corn left by their captain. After the Only after the judge's final sentence does the attorney for the defense feel he can relax. What is being talked about? What is the subject of discussion here? Absolutely right. So we are talking about the attorney who feels he can रिलैक्स। तो कौन रिलैक्स कर पाता है? अटॉर्नी कर पाता है।
कब कर पाता है इरेलीवेंट है, पर बात किसकी कर रहे थे हम? अटॉर्नी की कर रहे थे, जो फाइनली जजमेंट सुनने के बाद रिलैक्स कर सकता है। द नेक्स्ट वन, okay, this is from a newspaper. This is the first line of a very popular newspaper. So let's read this together. After the landfall process of severe cyclonic storm Dana has been completed, Odisha Chief Minister Mohan Charan Majni has said no deaths were reported in the state and their zero casualty mission was successful. Now, बात हम किस चीज के बारे में कर रहे हैं? एब्सोल्युटली राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट चीफ, उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या बोला, हम बात उसके बारे में करें। सो द whatever the chief minister has said, that is being talked about. So after the landfall process ये सब complete हुआ, this is some extra information, but the subject of discussion is the chief minister of Odisha who has said something, right? Okay, let's take a look at the next one. Months after it dissolved the super alignment team that was tasked with research on implications of AI superintelligence, Sam Altman led OpenAI has reportedly disbanded its AGI readiness team. Okay, identify karo what is being talked about. Are we talking about the research implications? Are we talking about AI superintelligence? Are we talking about Sam Altman? Or we talking about AI? Yes, absolutely right. We are talking about AI. तो भाई बहुत मंथ्स के बाद एक जो AI है जिसको सैम ऑल्टमैन लीड कर रहे हैं, लेकिन कर हुआ क्या? रिपोर्ट किसने डिसबैंड करा? ओपन एआई ने डिसबैंड किया है, आई मीन प्रोबेबली रिलीज कर दिया अपने टीम को। सो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन हियर वाज ओपन एआई विच हैज डिसबैंडेड इट्स टीम। ठीक है, समझ में आया? सो दैट वाज व्हाट बीइंग टॉक्ड अबाउट। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट स्लाइटली बिगर पैराग्राफ्स एंड वी विल अंडरस्टैंड कि हम इस इंफॉर्मेशन को समराइज कैसे करेंगे। अब देखो, सबसे पहले जब आप पढ़ना शुरू करो, आपको समझ में तो यही आना चाहिए कि बात किस बारे में कर रहे हैं। चलो, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब जब आप पूरा फुल फ्लेजेड पैराग्राफ पढ़ते हो तो यू हैव टू सी हाउ दिस सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इज कनेक्टेड टू द रिमेनिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द पैसेज। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है कि राइटर का आप थोड़ा सा फ्लो देखो, उसका इंक्लिनेशन देखो, वो सपोर्ट कर रहा है, वो निगेट कर रहा है, वो न्यूट्रल है। So there are certain things. So you identify the subject of discussion, you look at the logical flow of thoughts, you keep connecting them, these thoughts, with that of the original idea that you identified initially. And then probably when you put all these things together, आप identify कर लोगे कि passage का summary या उसका title क्या हो सकता है। ठीक है, let's start. So you can always pause the video and then probably decide what your answer is. So this says, there's beauty in simplicity and Mohammed Shami keeps it simple. So I guess subject of discussion kya hai? We are talking about Mohammed Shami keeping things simple, right? I'll change the color of the pen here. Okay, never mind. In the ODIs and T20s, India's premier pacer. Now, premier pacer, pacer is the fast bowler, and premier is, it's an adjective to show that somebody is really good, the best. So, the premier pacer does what he has been doing in the test for decade, hitting the seam at good speed, moving the ball both ways, and challenging both edges of the bat. Shami assures us that the classical form of pace bowling is format agnostic. At 33, the bowler from Amroha who trains on his farmland when at home has become a Hall of Famer. In the ongoing, I guess इसको अगर हम समराइज करेंगे तो हम बात कर रहे हैं मैं मोहम्मद शमी की। बाय द लुक्स ऑफ इट क्लियरली दिख रहा है राइटर मोहम्मद शमी को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वो उन्हें प्रीमियर पेसर बुला रहे हैं, एंड वो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बॉलिंग वो करते हैं। उनका बॉलिंग का पेस जो है फॉर्मेट एग्नोस्टिक है, यानी कि irrespective of the nature of the game, his bowling is consistent. Acha, he is from Amroha. He trains on his farmland, but he has also become a Hall of Famer. एंड देन वर्ल्ड कप में है वो जो इंडिया का शो स्टॉपर था, तो उसमें वो शमी, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज उनके शो स्टॉपर रहे थे।
अच्छा, ही ब्लू अवे द अनफॉर्चुनेट श्रीलंकन बैट्समैन। अच्छा, वो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। बहुत सारी चीजें उन्होंने उनके बारे में बोली है, एंड बट देन ही सेज ये आसान नहीं था, इट हैज नॉट बीन एन इजी राइड फॉर हिम। फ्रॉम यूपी ही हैड टू शिफ्ट बेस टू वेस्ट बंगाल, he made it to the Indian team after a hard grind. So I guess broadly speaking हमने क्या पढ़ा इस पैसेज में? इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि um, well, first of all, we know that he's a premier pacer. The writer is very appreciative. He is highly appreciative of him. उनका bowling style बताया, उनकी achievements बताई हैं, लेकिन साथ में ये भी बताया भाई आसान तो नहीं था. So उनको बहुत मेहनत लगी. See, after a hard grind, तो उनको जो है यूपी से वेस्ट बंगाल जाना पड़ा. उनको बहुत मेहनत लगी भाई. कुछ टाइम पहले तो सेलेक्टर्स ने उनको उन पे फेथ भी करना छोड़ दिया था. बट टुडे ही इज the showstopper and he's a premier pacer. So I guess let's take a look at the question now. Which of the following titles would best encapsulate the passage's content? भाई आपको देना तो टाइटल है, लेकिन जब आप उसे सही समराइज कर पाओगे तभी आप सोच पाओगे कि इसका टाइटल क्या होता, राइट? लेट्स टेक अ लुक एट द ऑप्शंस. मोहम्मद शमी, a test match specialist in ODI and T20 format. So yes, we are talking about Mohammad Shami, a test match specialist in just ODI and T20. Is it not the World Cup? Well, so I guess let's put this on hold. Then the next one, the unconventional rise of India's premier pacer, Mohammad Shami. So हम बात कर रहे हैं unconventional rise. Now see, from farmland to Hall of Fame. तो भाई, and after a hard grind to being a showstopper. So I guess आसान तो नहीं था, तो ये तो सही है, और unconventional भी नहीं था because he doesn't apparently come from the cricketing background. तो अच्छा, वो उसे प्रीमियर पेसर कह रहे हैं, अप्रिशिएटिव है, एंड बात हम मोहम्मद शमी की कर रहे हैं तो लुक्स ओके. अ ट्रायम्फेंट ट्रियो. भाई ट्रायम्फेंट ट्रियो, Shami, Bumrah, and Siraj, they shine. I guess this option should be ruled out. Why? Because these two, they were just a very small part of a bigger picture, that is Mohammad Shami and okay, I'm sorry, not Shami, Bumrah and Siraj. So I guess this is incomplete, doesn't encapsulate the passage's main content. So I guess this option should be ruled out. The Odyssey of Mohammad Shami. Now, Odyssey is generally a journey, but then this is, an adventurous journey of Mohammad Shami from UP to the Hall of Fame. भाई वो अमरोहा से, यानी कि यूपी से हॉल ऑफ फेम तक तो गए हैं, ये बात हम मानते हैं. बात हम मोहम्मद शमी की कर रहे हैं, ये भी हम मानते हैं. ओडीसी है, डिफिकल्ट जर्नी है, ये भी हम मान लेते हैं. तो आई गेस दो ऑप्शंस हम रूल आउट कर पाए हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी. But we are stuck between option B and option D. Which one do you think is a good answer choice? ना यहाँ पर लॉयर राइटर की लैंग्वेज पे ध्यान दो आप. हमने बात करा उनके अनकन्वेंशनल राइस का, किसका? इंडिया का प्रीमियर पेसर. तारीफ कर रहा है यहाँ पे राइटर, और यहाँ पे कह रहे हैं भाई मुश्किल था बट वो पहुंच गए. Now both of them look okay, but what do you think is a better answer choice here? Absolutely, option B is better. You know why? Because he is very appreciative of Mohammad Shami. That's why. आप पूरे पैसेज को ध्यान से देखो तो ऑप्शन बी essentially captures the essence of the passage, because we are talking about, see, his unconventional rise. We are talking about India being India's premier pacer, and we are talking about Mohammad Shami. So it encapsulates almost everything that's required. Not that there is anything wrong with Deep, but then it doesn't show the appreciation that the writer had for Mohammad Shami. So I guess option B will be better. The next one. Pause the video and then probably we can read it together. So एक तरीका तो है आप पढ़ लो, but दूसरा तरीका, अच्छा तरीका है कि आप जो है पैसेज को पर्सपेक्टिव के साथ पढ़ो. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन क्या था. भाई सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन था इंडिया का ओवरचर. ओवरचर्स का मतलब होता है एक एक गुड स्टार्ट, अ फ्रेंडली स्टार्ट. तो इंडिया का फ्रेंडली स्टार्ट है जो कि रीशेप करेगा और रीफ्लेवर करेगा रीजनल सिक्योरिटी लैंडस्केप. तो असेंशली हमने किस बारे में बात करी? हमने बात करी कि जो इंडिया ने दोस्ती करी है अपने रीजनल सिक्योरिटी को रीशेप और रीफ्लेवर करने के लिए. थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है ना? Now let's see, इसके बाद क्या हुआ?
Geopolitically, it is India's balancing act against the nexus of Turkey and Pakistan. Now, nexus का मतलब होता है connection, दोस्ती. तो भाई टर्की और पाकिस्तान दोस्त बन रहे थे, तो ये जो इंडिया का स्टार्ट है, जो दोस्ती है, ये उसका बैलेंसिंग एक्ट है. तो देखो कैसे जोड़ रहा है राइटर बात को. Islamabad has consistently supported the Azeri side, towing the Turkish lines in lieu of its support to the militants in Kashmir. तो भाई हो क्या रहा था कि अभी हमने बात करी टर्की और पाकिस्तान, तो भाई इस्लामाबाद जो है अजेरी साइड को सपोर्ट कर रहा है, और बदले में जो वो हैं, वो लोग कश्मीर में मेनेस क्रिएट कर रहे हैं. Now, Armenian President Nikol Pashinyan has even alleged that Pakistani special forces were complicit in fighting alongside अजेरी आर्मी. तो भाई वो भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो है अजेरी साइड के साथ मिलकर वॉर कर रहे थे. अब राइटर कहता है ये एलिगेशन बेसलेस नहीं है. भाई एलिगेशन जनरली होता है, आपने किसी को अक्यूज तो कर दिया लेकिन सपोर्ट नहीं है आपके पास, कुछ भी प्रूफ नहीं है कुछ भी. राइटर कहते हैं नहीं भाई साहब, बेसलेस तो नहीं है. Pakistan did indeed sign a trilateral agreement with Turkey and Azerbaijan in 2017. भाई पाकिस्तान ने ट्राईलैटरल अग्रीमेंट इन दोनों के साथ साइन किया है, विच वॉज फॉलोड बाय अनदर अफर्मेशन. तो भाई क्या किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने ट्राईपार्टीट नेक्सस साइन कर लिया. अच्छा, उसमें उन्होंने बोला कि हमारी तो बिल्डिंग और मोबिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट का हमारा कोऑपरेशन रहेगा. उसके बाद उन्होंने बोला हम तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर लेंगे साथ में. तो ये सब चल रहा है पाकिस्तानी साइड, ठीक है. अब इंडिया ने क्या करा. इंडिया वॉज क्विक टू फॉलो द सूट बाय फॉरवर्डिंग अ ट्राईलैटरल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क. उन्होंने दोस्ती कर ली जाके ईरान और आर्मीनिया के साथ. मगर मगर इट हैज बीन लिमिटेड टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. भाई कर तो ली लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे ही रुक गए वो आकर. इन सपोर्टिंग आर्मीनिया उसको एक और बेनिफिट मिला, उसे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल गया, ग्रीस. ना स्ट्रैटेजिक क्या होता है, कहीं से अगर आपको कोई एडवांटेज मिल रहा है ना तो स्ट्रैटेजिक है. तो जब इंडिया ने इन दोनों के साथ दोस्ती करी तो उसकी स्ट्रैटेजिक पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर जिससे इंडिया को एडवांटेज मिलेगा, वो ग्रीस बन गया. This country may have an axe to grind with Turkey over disputed gas fields in the Eastern Mediterranean. अब ना इसको एक बार समराइज करते हैं. सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन, इंडिया ने क्या करा, फिर उसने बताया इंडिया ने क्यों करा, किसके साथ पार्टनरशिप करी. तो इंडिया ने दोस्ती करी ईरान के साथ, आर्मीनिया के साथ, बदले में उनको ग्रीस फ्री मिल गया. भाई एक के साथ दो के साथ एक फ्री, ठीक है. चलो ये इंडिया ने करा. पाकिस्तान ने दोस्ती करी टर्की के साथ और अजरबैजान के साथ करी. तो वो लोग इनके खिलाफ काम कर रहे हैं, ये बैलेंसिंग एक्ट है भाई, हम बचा के चल रहे हैं अपने आप को. ठीक है, यही हुआ पैसेज में. ठीक है, आइडेंटिफाई जब आप करके चलोगे ना, राइटर क्या बोल रहा है उसे कनेक्ट करके चलोगे, आपकी आंखें सही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पकड़ेगी ना, वो है पावर पैक्ड रीडिंग. तो उससे जब आपको क्लैरिटी आएगी तो अपने आंसर सही बनने लगेंगे. अब देखते हैं क्वेश्चन. Based on the passage, evaluate which of the following suggestions could potentially be advocated by author of India's strategic maneuvering in South Caucasus. अच्छा देखो, क्वेश्चन बोलता है पोटेंशियली एडवोकेट होगा, यानी कि राइटर ने लिखा नहीं है बट राइटर ऐसा बोल सकता है. अच्छा देखो, ये क्वेश्चन, अब भाई राइटर तो कुछ भी बोल सकता है, हमें क्या पता वो क्या बोलेगा. लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, रीडिंग का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस का एक समझो ग्राउंड रूल होता है कि आंसर तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से ही आएगा. तो अगर राइटर ने कुछ लिखा है तो उसी को सपोर्ट वो करेगा इवन अपनी अजम्पशन में. अगर राइटर ने वो नहीं लिखा, अगर राइटर जो यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो उसके अगेंस्ट जाए, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करे, तो वो कभी भी राइट आंसर नहीं होगा. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द ऑप्शंस एंड लेट्स सी बेस्ट कौन सा ऑप्शन कनेक्ट करेगा राइटर के स्टेटमेंट के साथ. सो इंडिया मस्ट, अच्छा देखो हैवी वर्ड है, इट मस्ट प्रायोरिटाइज डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस ओवर एक्सपैंडिंग इकोनॉमिक टाइज और सिक्योरिटी कोलैबोरेशन. अच्छा देखो, यहाँ पे राइटर कहता है उसे अपने डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए इकोनॉमिक एक्सपेंशन से या सिक्योरिटी कोलैबोरेशन से ज्यादा. भाई राइटर ने ये तो बोला था कि इकोनॉमिक टाइज तक लिमिट हो गए, पर अपने को ज्यादा चाहिए.
ज्यादा क्या, सिक्योरिटी कोलैबोरेशन से भी ज्यादा कुछ चाहिए था, वो भी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन। क्या बोला था राइटर ने ऐसा? राइटर स्ट्रिक्टली, एक बार ना अपने दिमाग में फिर से भी अगर रन करोगे, पाकिस्तान ने नेक्सस बनाया टर्की और अजरबैजान के साथ सिक्योरिटी, अपनी रीजनल सिक्योरिटी टाइट करने के लिए। इंडिया ने अपनी रीजनल सिक्योरिटी टाइट करने के लिए क्या कहा? आर्मीनिया के साथ, ईरान के साथ, और बदले में उनको ग्रीस फ्री मिल गया, उसके साथ अपना कोलैबोरेशन किया, ओनली एज अ बैलेंसिंग एक्ट। ठीक है, राइटर ने बोला इकोनॉमिक एक्टिविटीज तक हम सीमित हैं। दैट मीन्स वो कहना चाहते हैं इसके आगे हमें जाना चाहिए, और बात हम कर रहे हैं सिर्फ सिक्योरिटी कोलैबोरेशन की, रीजनल सिक्योरिटी की। तो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन के बारे में क्या राइटर बोलता? वेल, होल्ड पे रख लेते हैं, देखते हैं इससे बेटर कुछ है क्या। India should enhance its economic and diplomatic engagement exclusively with countries outside the regional tripartite alliances। भाई वो इनके बाहर जाने के लिए क्यों बोलेगा राइटर? वो बोल रहा है जब हम बात करें कि हमने इन लोगों के साथ काम किया, तो प्रॉब्लली वो उसी के अराउंड बात करेगा, तो ये ऑप्शन तो रूल आउट हो जाएगा। Enhancement of economic partnership with Iran and Armenia and strengthening of security collaboration with strategic allies are advisable। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं भाई इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ा लो, बढ़िया, ईरान और अर्मेनी के साथ, बहुत बढ़िया, और स्ट्रेंथन कर लो सिक्योरिटी कोलैबोरेशन को विद स्ट्रेटेजिक एलाइज। भाई स्ट्रेटेजिक एलाइज, लेट्स से ग्रीस, और क्या कर लो, सिक्योरिटी कोलैबोरेशन को। भाई ये एडवाइजेबल है, तो ठीक है, यहाँ तक तो हम पहुंच ही चुके हैं, ये भी कर लो। क्या राइटर ऐसा बोलता? फिर से याद करो, उसने बोला था इकोनॉमिक्स तक तो हम पहुंच गए, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन तक, और फिर चुप हो गया, और बात हम रीजनल सिक्योरिटी की कर रहे थे। तो शायद ये बात बोलता ना कि भाई यहाँ तक मत रुको, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, सिक्योरिटी की फिक्र कर लो, है ना? बोलता ना। चलो, अब देखते हैं इसका अगला वाला ऑप्शन क्या बोलता है। solely the augmentation of security measures with existing allies is essential। solely argumentation होता है किसी भी चीज का बढ़ना, तो सिर्फ सिक्योरिटी मेजर्स का बढ़ना, एक्सक्लूडिंग द एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। भाई solely मतलब सिर्फ ये। क्या वो बोलता कि भाई सिर्फ सिक्योरिटी मेजर बढ़ा लो और इकोनॉमिक एक्सपेंशन को तो भाड़ में जाने दो? क्या बोलता? फिर से सोचो। आई थिंक वो सिर्फ ऑप्शन सी सजेस्ट करता, क्योंकि ये इन सिंक विथ द गिवन इंफॉर्मेशन है। ऑप्शन ए में डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन को वो बोल रहे हैं सिक्योरिटी कोलैबोरेशन से ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे वो कह रहा है कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन को जाने दो। यहाँ पर वो कह रहा है कि ट्राइपार्टीट जो तुम्हारा नेक्सस था उसके भी बाहर चले जाओ। देखो हर ऑप्शन में, क्या तुम्हें दिख रहा है कि उसने कुछ भी ऑप्शन में ऐसा गिवन है जो उसने नहीं बोला, जो उसने, जिसमें उसका मतलब भी नहीं था? ओनली ऑप्शन सी कैप्चर्स द एसेंस ऑफ व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, हेंस इट विल बी द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन एंड प्रोबेबली द लास्ट वन इज वेल। एक तरीका है, आप इसको पढ़ लो, सिंपल रीडिंग कर लो, लेकिन पावर पैक्ड तरीका क्या होगा पढ़ने का, कि आप फोकस करो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन पे, उसको जोड़ो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। देखो हर नई लाइन बिल्ड होती है पिछली लाइन पर, और अगर अच्छी राइटिंग कन्वेंशन की हम बात करें तो राइटर हमेशा बात करेगा सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन से जोड़ के चीज को चलेगा। ठीक है, तो सेम चीज हम यहाँ पे करते हैं। तो उसने शुरू करा बटरफ्लाई इफेक्ट के साथ। तो भाई बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है? कि बटरफ्लाई ने अपने विंग्स को फ्लैप किया और बहुत दूर टोर्नेडो आ गया। कैसा हो सकता है कि बटरफ्लाई यहाँ पर अपना विंग फ्लैप करे और कहीं पे टोर्नेडो आ जाए? होता है क्या ऐसा? वेल, हमें नहीं पता, हम तो वो मानेंगे जो राइटर बोल रहा है। राइटर ने बोला सत्य वचन। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसने क्या बोला। सो the discovery of the effect has its origin in the work of American mathematician Edward Lorenz, who pioneered the use of computers and mathematical models to predict the weather। तो भाई उन्होंने इस चीज को जब वेदर को प्रिडिक्ट किया, तो वहां पर उन्होंने इस चीज का के बारे में बात करी है। बिफोर हिम, उनसे पहले हेनरी पॉइनकेयर एंड नॉर्बर्ट वाइनर नोटिस कर चुके थे कि अर्थ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल स्टेबल नहीं होता, एंड वेदर जो है छोटे से चेंज से बहुत दूर तक अफेक्ट हो सकता है। तो एक छोटा चेंज बहुत दूर तक अफेक्ट ला सकता है। अब इसको रिलेट करो, क्या ये बटरफ्लाई इफेक्ट जैसी कोई बात हो रही है क्या, कि स्मॉल चेंज जो है बड़ा वेदर में बड़ा चेंज ला सकते हो, और पास नहीं बहुत दूर? ठीक है, जुड़ा हुआ लग रहा है ना? Lawrence used computers to create mathematical models of this deterministic chaos and with them tried to predict the weather।
बटरफ्लाई इफेक्ट इज अ स्टेटमेंट। अच्छा, राइटर कभी आपको कोई बात समझाना चाहेगा ना किसी कॉन्सेप्ट को, तो वो खुद ही उसको डिफाइन भी कर देता है, जैसे उसने यहाँ पर करा। द बटरफ्लाई इफेक्ट इज अ स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस chaotic system. Its final outcome is highly sensitive to its starting condition. If one of these conditions changes a little, just a little, भाई थोड़ी सी भी बदल जाएगी ना, तो फाइनल आउटकम बहुत फर्क हो जाएगा. Could be very different. Could be very different. Like hot, dry day rather than a bleak, damp one. He wrote that in one forecast model he was running in 1961, changing the value of some input variables from 0.056127 to 0.056 resulted in drastically different prediction of weather for 2 months later. तो देखो, इतना छोटा सा चेंज ड्रास्टिकली डिफर कर सकता है 2 मंथ बाद के वेदर को. क्या ये फिर से जाके जुड़ा इस बात से? लगता तो है जुड़ा है. साइंटिस्ट ऑब्जर्व द बटरफ्लाई इफेक्ट इन अ वैरायटी ऑफ फील्ड्स, और वो एक क्वांटम केओस कर रहे हैं जिसको वो क्लासिकल केओस क्वांटम थ्योरी से रिलेट करें. चलो भाई, तो फिर से देखो, बटरफ्लाई इफेक्ट, मुझे लगता है ये राइटर ना एक ही बात को बार बार बोलता रहा, बस उसने शब्द बदल दिए या अपने एग्जाम्पल ज्यादा दे दिए, पर वो एक ही बात के बारे में बात कर रहा था. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल मैसेज इन द पैसेज? भाई एसेंशियल मैसेज यानी कि सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन, यानी कि प्राइमरी पर्पस. तो ढूंढते हैं. Innovation in quantum mechanics cannot disrupt essential norms in classical physics. भाई क्या हम क्वांटम मैकेनिक के इनोवेशन को की बात कर रहे थे जो बिल्कुल डिसरप्ट नहीं कर सकते क्लासिकल फिजिक्स को? शायद हम तो इसके आसपास भी नहीं फटके थे. तो ये एसेंशियल मैसेज कैसे होगा? Minor initial variance in the system can precipitate substantially divergent outcome. छोटे और माइनर चेंजेस और इनिशियल लेवल पे चेंजेस जो है सब्सटैंशियली डाइवर्जेंट आउटकम कर सकते हैं. भाई ऐसा तो कुछ बोला था उसने, होल्ड पे रख लेते हैं. एडवांस कंप्यूटेशनल मॉडल्स हैव कंप्लीटली सप्लांटेड, सप्लांटेड होता है सुपरसीड किया और रिप्लेस करके रख दिया ट्रेडिशनल मेथड्स इन साइंटिफिक. क्या ऐसा था कि कंप्यूटेशनल मॉडल्स जो नए थे उन्होंने ट्रेडिशनल मॉडल को बदल के रख डाला था, धो डाला था? नहीं, राइटर ने ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला. The study of deterministic chaos offers a predictable framework. Well, predictable framework तो नहीं था. उसने बोला था कुड बी पॉसिबल है, और हम सिर्फ मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना की बात तो नहीं कर रहे थे. सो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको राइटर का मैसेज समझ में आया होगा, तो इसका क्लियर आंसर क्या है? इसका क्लियर क्लियर आंसर है ऑप्शन बी, जो कि बोलता है छोटे से चेंज से भाई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है. अच्छा, विद दिस आई कम टू ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द सेशन. देखो, हमने बात करी पावर पैक्ड रीडिंग की. तो भाई अगर रीडिंग करनी है तो बिना इस बात को डिस्कस करे कि रीडिंग कहाँ से करी जा सकती है, कैसे करी जा सकती है, सेशन कंप्लीट ना होता. तो रीडिंग दो लेवल पे हो सकती है. एक, आप अपनी पसंद की, अपनी फेवरेट जॉनर की बुक उठाओ, उसको पढ़ो एंड रीडिंग को फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, फॉर द जॉय ऑफ रीडिंग इंजॉय करो. ठीक है? तो ये तो सबसे अच्छा तरीका है. जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप इस प्रोसेस को एंजॉय करोगे, उतना आपका रीडिंग अच्छा हो जाएगा, आपका परसेप्शन अच्छा हो जाएगा, आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी. Now, कुछ भी, anything that you feel that will help you improve your reading should be picked up, probably in the offline source, and should be read. अच्छा, हर बार ऑफलाइन रीडिंग शायद पॉसिबल ना हो, तो हम ऑनलाइन रीडिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज अपने एंट्रेंस टेस्ट तो मोस्टली ऑनलाइन है. सो देर आर सम वेरी गुड वेबसाइट्स जहाँ से आप कंटेंट उठा सकते हो एंड उसको रीड कर सकते हो. एंड देर आर सम वेरी गुड न्यूज़ पेपर्स जहाँ से आप रीडिंग कर सकते हो. सो बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे भी आपको ठीक लगेगा. सो एंड ऑफ द डे, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. रीडिंग को इंजॉय करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. रीडिंग का एसेंस समझना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप ये सब चीज समझोगे, अगर आप जब रीड करना शुरू करोगे, तो आप उसके एसेंस पे ध्यान दोगे, उसके सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन पे ध्यान दोगे. यू विल नॉट गेट बॉदर्ड बाय द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेंटेंसेस. आप आइडेंटिफाई कर लोगे किस बारे में बात हो रही है, बाकी सब इंफॉर्मेशन नॉट सो इम्पॉर्टेंट. कनेक्ट करके चलोगे,
एसेंस को अंडरस्टैंड करोगे, रीडिंग बढ़िया हो जाएगी, आपका माइंड मैपिंग अच्छी हो जाएगी, एंड इवेंचुअली आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में कमांड अच्छा हो जाएगा, आपका स्कोर बढ़िया हो जाएगा. Well, with this, I come to the end of this session. I am sure that you've learned plenty and you will leave plenty of comments in the comment box. Just let us know if there is something else that you would like on the similar lines. Well, stay connected. We will be back with more. Take care. Bye bye.